Hello dosto, welcome to Siddhi Punjab. Today we are going to discuss the current affairs related to 11th and 12th April. Hope you are all doing very well. Be enthused, be motivated. Low faces हर किसे दे preparation ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ. It is very difficult to stay high every day, but whenever you feel low, go out, talk to somebody, talk to us, talk to your friends, talk to your family, watch something that excites you, right? ये सब techniques you have to use to stay motivated, to stay energized in this long preparation. And Siddhi Punjab is always there to help you whenever you face any issue. We are just a message away, right? ਇਸੇ ਥੋਟ ਨਾਲ ਲੈਟਸ ਬਿਗਿਨ ਟੂਡੇਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਸ 'ਚ ਆਪਾਂ 11 ਤੇ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ PCS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿਓ. And also Siddhi Punjab is happy to announce Punjab exclusive test series that is meant to help you prepare everything about PPSC syllabus, right? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲਡ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਸ ਇਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੂੰਗੀ. ਵਾਈ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਦਿਸ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਹਾਊ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਅਟੈਂਪਟ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼, ਹਾਊ ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼. everything will be told to you. 7th May ਤੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੈ. there is lot of time for you to prepare well so that ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇ ਸਕੋ. ਇਸੇ ਲਈ with 1 month almost ਦਾ ਗੈਪ ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਫੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ. ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਐਨੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਪੇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਆਲ, ਪਲੀਜ਼ ਮੈਸੇਜਸ. ਆਈ ਐਮ ਗੈਟਿੰਗ ਮੈਸੇਜਸ ਫਰਮ ਸਟੂਡੈਂਟਸ. ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਅ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫॉर ਯੂ. अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, just reach out to us, right? Let's start with today's video with the topics that we'll be discussing. First topic that we will discuss is regarding the Freedom House Index. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ NGO ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਬ੍ਰਿੰਗ ਆਊਟ ਵੇਰੀਅਸ ਰਿਪੋਰਟਸ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਦੈਨ ਜ਼ੋਜੀਲਾ ਟਨਲ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ. ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਓਲ MCQ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਲਈ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨਸ ਲਈ. ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਅਬਾਊਟ ਦਿਸ. ਦੈਨ ਅ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼, ਅਵਾਰਡ ਇਜ਼ ਇਨ ਨਿਊਜ਼. ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਅਵਾਰਡ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ. we'll discuss this also. Just for prelims perspective, factual ratta maran wali information hai, nothing much in that, right? Then our foreign minister, our external minister is going to visit two important African countries. ठीक है जी. हजे details ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ. that we will discuss subsequently in the next discussion, but today we will see the maps of these countries which is very important for your examination. map based question ਹਰ ਸਾਲ 3 ਤੋਂ 4 ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੇਅਰ ਮਿਨੀਮਮ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਣੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ. ਦ ਮੈਪਸ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਲਿੰਕ ਟੂ IR ਔਰ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ. ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਰਿਕਵਾਇਰਡ ਟੂ ਸੀ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਥੀਸ ਟੂ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਦ ਮੈਪਸ ਆਫ ਥੀਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਡਿਟੇਲਸ. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ. ਦੈਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ. ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਦੈਟ ਹਾਊ ਅ ਪਾਰਟੀ ਗੈਟਸ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਆਫ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਸਟੇਟ ਪਾਰਟੀ. ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਆਲਰੇਡੀ UPSC ਐਂਡ PPSC ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ ਆਸਕਡ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ, and these conditions are very important for us to remember for the upcoming examinations. Finally, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਰਵ ਹੈ 11th April ਨੂੰ. ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ. although I have already discussed this in 23rd December ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ, ਰਾਈਟ? ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲਸ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਐਂਡ ਫਾਈਨਲ ਵਨ ਮੋਰ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਐਨਰਜੀ ਤੇ ਡਿਟੇਲਡ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਐਨਰਜੀ. ਐਂਡ ਇਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਆਈਟਮ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, right? That is the topics that we are going to discuss. Let's start with the first topic, right? Tibet ranked world's least free country. अगर तुसी this latest index ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, freedom house ਦਾ ਇੱਕ index ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਹੈ. ਦਿਸ ਫਰੀडम ਹਾਊਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ NGO ਔਰ NPO ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਦਿਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿਸ 2 ਮੇਨ things, that is freedom in the world index,
पूरी दुनिया विच कंट्रीज़ विच किन्नी फ्रीडम लोकां नूं उन्हां दे सिटीजनस नूं मिलदी है टू लिव इन अ फ्री मैनर, टू एक्सप्रैस दैमसैल्व्स इन अ फ्री मैनर, दैट इज़ वॉट इज़ जस्ड बाय दिस वॉच डॉग। इनू वॉच डॉग भी कहते हैं। वॉच डॉग का क्या मतलब हुंदा है, जिवें तुसीं लिटरल मीनिंग देखो कि आपां आपदी रखवाली रे घर दे बाहर कुत्ते रखते हैं, राइट। तो इट वॉच डॉग का इत्थे मतलब है कि ये इन्नी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है दैट कीप्स एन आई ऑन फ्रीडम ऑफ द पीपल, राइट। ये वॉच करती है द फ्रीडम ऑफ द पीपल लिविंग इन वेरीअस कंट्रीज, दैट इज़ वॉट इज़ वॉच डॉग। जिमें इंडिया च CBI इज़ अ वॉच डॉग अगेंस्ट करप्शन, यू कैन से, राइट। CVC इज़ अ वॉच डॉग अगेंस्ट करप्शन, CAG इज़ अ वॉच डॉग अगेंस्ट गवर्नमेंट मिसएप्रोप्रिएशन। इस तरीके नाल ये सब होंगे है वॉच डॉग्स। दीज टर्म्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चनस में स्टेटमेंट विच भी ये टर्म्स आंदियां एंड वी फेल टू अंडरस्टैंड कि ये टर्म का क्या मतलब है, राइट। सो दैट इज़ वाई आई एम एक्सप्लेनिंग दिस। ऑल्सो इंग्लिश के पेपर च तां आ ही सकता है, राइट। सो दिस वॉच डॉग जिहड़ा इंटरनेशनल वॉच डॉग है फ्रीडम हाउस, दिस प्रेजेंट्स फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स, फ्रीडम इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, ठीक है जी। आ रिपोर्ट विच ही इंडेक्स दिता होएगा, राइट। सो ये दो चीज़ां ये प्रोड्यूस करता है। 2023 ਲਈ भी इसने इंट्रोड्यूस किया है, इन विच इट हैज़ सैड दैट these 3 countries, Tibet, South Sudan, Syria, are the least free countries in the world. Especially Tibet ते ज़्यादा फोकस किया है इस रिपोर्ट ने because of the Chinese government. As we know, there is lot of human rights violation that repeatedly happens in Tibet. लोकां नूं freely movement, religious प्रोपगेशन वगैरह की फ्रीडम नहीं है। लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट, चाइनीज़ CPP पार्टी इज़ देयर, CCP पार्टी इज़ देयर इन तिब्बत। पीपल आर नॉट एबल टू फ्रीली लिव देयर, दैट इज़ वाई दिस रिपोर्ट हैज़ कम आउट। आप सिर्फ ये 2 चीज़ां याद रखनियां है, केड़ा इंस्टीट्यूशन है, वॉट आर द reports that it brought, the 3 main countries which it has highlighted as the 3 least free, ठीक है जी। साउथ सुडान अफ्रीका की कंट्री है, अगेन बहुत ही मॉल गवर्नेंस, मिस गवर्नेंस इस कंट्री विच रहिंदी है, राइट। अंडर पावर ऑफ द हैंड यूज रूल किया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स बारे। देयर इज़ नो डेमोक्रेसी एज सच दैट इज़ एग्जिस्टिंग इन दिस कंट्री। सो अगेन दैट इज़ वाई लीस्ट फ्री कंट्री दे विच आया है। एंड सीरिया, वी ऑल नो दैट देयर इज़ lot of trouble that is going on in Syria since a long time, proxy war, ये सब terms थोड़ी difficult है तुहाडे लई समझना, but you can just say these are disturbed places जिथे people are not getting their basic rights to live a free life, right। that is why this is in the top at the index, ठीक है जी। आप सिर्फ ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद रखनी है क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर विच ये क्वेश्चन आपां नूं पूछा जा सकता है, राइट। So that is what. Now Gadkari reviews work on Zojila tunnel, ठीक है जी। Zojila pass, Zojila tunnel साडे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये बारे देख लेने हैं। फर्स्ट लेट्स सी द Zojila pass। टंग ट्विस्टर की तरह है ये Zojila pass, राइट। पासिस क्या होंगे है, इफ़ यू हैव स्टडीड जोग्राफी यू विल गेट टू नो कि जोड़े माउंटेनियस एरियाज होंगे है दे हैव कंटीन्यूअस माउंटेन रेंजिस, तो उन्होंने ट्रैवर्स करना ईजी नहीं होंगे। कुछ कुछ यह जे सैक्शनस होंगे है वेयर दिस कंटीन्यूअस रेंज ब्रेक्स एंड उत्थों आपां रास्ता लभन की कोशिश करते हैं टू ट्रैवल फ्रॉम वन साइड टू दी अनदर, दैट इज़ वॉट दीज पासिस। तो यह जे बहुत सारे पासिस है इंडिया विच एंड वी हैव टू रिमेंबर ऑल ऑफ दैम और एटलीस्ट मोस्ट ऑफ दैम, राइट। फॉरगिव मी, ये थोड़ा जो टेक्स्ट है वो मूव हो गया है, इस वजह तो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग विच इशू है। बट देर आर लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट पासिस इन इंडिया जिन्हां ते क्वेश्चनस भी आते हैं, तो आपां नूं याद करना भी ज़रूरी है। ऑल्दो सारे आपां नहीं कर सकते बट इंपॉर्टेंट करने की कोशिश करनी है। जस्ट यूज़ दिस मैप, आपदे मैप ते भी तुसीं मार्क कर लेना है, आपदे कोल आपदे हाथ नाल ये मैप बनाओ। जोजिला पास, पीर पंजाल पास वेरी इंपॉर्टेंट, पीर पंजाल, बैनीहाल पास। तुसीं सिर्फ ये पास लिख के जस्ट ट्राई टू रिमेंबर कि किस किस एरिया नूं कनैक्ट करते हैं, किस किस माउंटेन रेंज विच ये फॉल कर रहे हैं। सिर्फ ये 2 इन्फॉर्मेशन इन्हां बारे तुसीं याद रखनी है। खरदूंगला पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, हाईएस्ट मोटराइजेबल रोड है इत्थे। जो लोग लेह लद्दाख का ट्रिप आजकल बड़ा फेमस है, हर कोई जा रहा है, दे विल नो कि हाईएस्ट वर्ल्ड दी मोटरेबल रोड इत्थे मिलती है, इसलिए दिस पास इज़ वेरी फेमस एंड क्वेश्चन आ सकता है। खरदूंगला पास, ये बारे होर इन्फॉर्मेशन देख लियो। दैन बारचला पास,
ਸ਼ੀਪਲਿਕਾ ਪਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਨੇ ਆਪਾਂ। ਲਿਪੂ ਲੇਕ ਪਾਸ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਨਥੂਲਾ ਪਾਸ, ਰਾਈਟ, ਜੈਲਪਾ, ਬਮਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਐਟਲੀਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨਸ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕੋ ਅਤੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਡੂ ਜਸਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਕਵਰ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਪਾਸਿਸ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਜਿਲਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੋਜਿਲਾ ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਾਸ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਲੋਕੇਟਡ ਇਨ ਦੀ ਲੱਦਾਖ ਏਰੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਊਂਟੇਨ ਪਾਸ ਆਫ ਬਲਿਜ਼ਰਡਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਲਿਜ਼ਰਡਸ ਐਜ਼ ਯੂ ਨੋ ਜੋਗ੍ਰਾਫਿਕਲ ਫਿਨੋਮੀਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੈ, ਸਨੋਫਾਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦੇਅਰ, ਉਹਨੂੰ ਬਲਿਜ਼ਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਏਰੀਆ ਵਿਟਨੈਸਿਸ ਵੈਰੀ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਠੰਡੀ ਹਵਾਵਾਂ, ਸ਼ੀਤ ਹਵਾਵਾਂ, ਉਹਦਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਨੋ ਤੂਫਾਨ, that is what is witnessed in this place, that is why it is also known as the mountain pass of blizzards, ठीक है। ये टर्म याद रखनी है, क्वेश्चन में भी आस्ड, ठीक है। इत्थे इन्नी ठंड होंदी है कि मोस्ट ऑफ द ईयर दे टाइम, स्पैशली विंटर्स दे टाइम, दिस पास इज क्लोज्ड, ठीक है। आप इनू यूज़ नहीं कर सकते एक जगह तो दूसरी जगह जाने लिए, बिकॉज दिस इज मोस्टली क्लोज्ड बिकॉज ऑफ द blizzards, the snowfall, the heavy snow blockage, that is why ये पास नू हर साल, हर महीने, हर टाइम मोटरेबल रखन लई कि ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕੀਏ, that we do not get disconnected from the northern part of India. That is why Zojila tunnel has been envisaged by the Indian government. ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਨਾਰਥ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ अपने एक्सेस विच ना रहन, बिकॉज वी हैव अ थ्रेट ऑफ चाइना, वी हैव अ थ्रेट ऑफ पाकिस्तान। वी कैनॉट अलाउ दीज कंट्रीज टू टेक कंट्रोल ऑफ अवर एरियाज बिकॉज वी आर नॉट एबल टू गार्ड अवर एरियाज। तो इसे ਲਈ ਜ਼ੋਜਿਲਾ टनल की स्थापना तुसीं कह सकते हो इंडिया द्वारा की गई। नाउ दिस ਜ਼ੋਜਿਲਾ टनल प्रोजेक्ट 2018 ਵਿੱਚ ਇਹ स्टार्ट होया। दिस इज़ एशियाज़ लॉन्गेस्ट टनल, मस्ट रिमेंबर इट, दैट इज़ वाई दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आप डिस्कस कर रहे हैं। एशिया दी लॉन्गेस्ट टनल है, बाई डायरैक्शनल, दोनों तरफ जा सकते हैं, नहीं तो पतली टनल्स होंगी हैं कि एक तरफ ही जाने का मौका मिलता है, बट दिस इज़ अ ब्रॉड बिग टनल वेयर टू-वे रोड विल बी मेड। बाई डायरैक्शनल टनल है, ऑल वेदर कनैक्टिविटी प्रोवाइड करेगी, दैट इज़ वॉट इज़ द मेन मोटो बिहाइंड दिस, ताकि असी हर साल दे, हर महीने, हर टाइम, हर पार्ट ऑफ इंडिया नू एक्सैस कर सकीए, दिस नदरन पार्ट ऑफ इंडिया नू एक्सैस कर सकीए, राइट। सो ऑल वैदर कनैक्टिविटी, मतलब हर मौसम च ये आपां नू कनैक्टिविटी प्रोवाइड करूगी श्रीनगर, कारगिल, लेह दे विच, ठीक है जी। सारे एरियाज जिहड़े कनैक्टेड रहणगे एवरी टाइम ऑफ द ईयर, ठीक है। 30% ऑफ दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन कंप्लीटेड, दैट इज़ वॉट साडे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर गडकरी जिहड़े ने यही रिव्यू करन गए सी, इन्हां ने कहा 30% ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट हो गया है एंड वी विल सून ट्राई टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिकली एंड इकनॉमिकली ऑल्सो, क्योंकि ये लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ इन्हां एरियाज़ लई क्रिएट करेगा, राइट। वी हैव टू रिमेंबर दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन आ सकता है, सो प्लीज़ रिमेंबर दिस डेटा। ਜ਼ੋਜਿਲਾ पास ते भी, ਜ਼ੋਜਿਲਾ टनल ते भी, राइट। दैट इज़ अबाउट दिस, और ट्राई टू कवर ऑल दीज पासिस जिन्ने मैं एटलीस्ट हाईलाइट किए हैं, इन्हां ते की इन्फॉर्मेशन करन दी कोशिश करो, विच एरियाज़ दे आर कनैक्टिंग एंड केड़ी रेंज, माउंटेन रेंज विच ये लोकेटेड ने, एनी अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिमें ਜ਼ੋਜਿਲਾ बारे इन्फॉर्मेशन है अपने को, माउंटेन ऑफ ब्लिजर्ड्स, खरदूंगला वाले हाईएस्ट मॉडरेबल रोड, यह जा कोई की पॉइंट होवे वो याद करना है आपां, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट, जस्ट इंपॉर्टेंट फॉर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, CR Rao फ्रॉम इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। ये याद रखना है, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स IPS 2023 का किनू गया है, CR Rao जी नू, ठीक है। ये 102 साल की परसनैलिटी ने, इन्नी एज ते इन्हां नू ये प्राइज़ मिलिया है। ये इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स जिहड़ा एरिया है, जिहड़ा तुहाडे GS पेपर विच भी पुछया जाता है, ठीक है जी। उस पेपर विच आई मीन ये स्टैटिस्टिक्स का जिहड़ा एरिया है, ये वो एरिया का नोबल प्राइज़ भी मन्निया जाता है, राइट।
ਤਾਂ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਇਹ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਇਸ ਸਾਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਇੰਡੀਅਨ ਅਮੈਰੀਕਨ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਆਲਦੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਡਿਟੇਲ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ, ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਫੀਲਡ हैज़ बीन awarded to C.R. Rao this year, ठीक है जी, 2023 ਲਈ। नेक्स्ट, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर टू एम्बार्क ऑन युगांडा मोज़ैम्बिक, ठीक है जी। अफ्रीका की 2 कंट्रीज़ है जिस च अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर गए ने। नाउ अपने कोल ये इंपॉर्टेंट है दैट वी नो द लोकेशंस। फर्स्टली ब्रॉडली देखते हैं कि लोकेशन कितने है। दिस इज़ वॉट इज़ योर युगांडा, जिन्ना भी हाईलाइटेड पार्ट है, राइट। दिस इज़ वॉट इज़ योर मोज़ैम्बिक, द कोस्टल एरिया, दिस इज़ वॉट इज़ मोज़ैम्बिक। तो इत्थे तुहानू मोज़ैम्बिक चैनल भी दिख जाएगा इस वजह तो, राइट। सो ये जिहड़ी कंट्रीज़ है इंपॉर्टेंट है, इन्हां नाल डेवलपमेंट्स क्या होणगियां वो आपां देखांगे। बट सी मैप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुहानू सारे क्वेश्चन आते हैं। पहला ब्रॉडली इस मैप च ही सारी इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करो। फॉर एग्जाम्पल इत्थे आपां नू दिख रहा है लेक विक्टोरिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक है। ये क्वेश्चन UPSC च पूछा जा चुका है। The countries surrounding Lake Victoria are 3 that you can remember with this mnemonic cut, ठीक है जी। केनिया, युगांडा, तंजानिया याद करना ज़रूरी है, ठीक है। उस तो बाद इत्थे मोज़ैम्बिक चैनल भी तुसी आपदे मैप विच देखना है। देयर वी हैव इंडियन ओशियन, इत्थे वी हैव रेड सी, राइट। दैन वी हैव हॉर्न ऑफ अफ्रीका ऑल्सो हेयर, ठीक है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका नू सराउंड करन वाली 4 कंट्रीज़ हैं, उन्हां नू किवें याद कर सकते हैं, राइट। इफ़ यू वॉन्ट टू लर्न दैम, लर्न विद दिस mnemonic, ठीक है जी। सोमालिया, एरिट्रिया, जिबूती, राइट, ते इथोपिया, ये 4 कंट्रीज़ दे आर सराउंडिंग हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यू कैन लर्न दिस विद दिस निमोनिक, ठीक है जी। आई निमोनिक्स नाल ही याद होंगे है, रॉ याद करना डिफिकल्ट हो जाता अपने कोल, ठीक है। दैन मैडिटरेनियन सी, राइट। दैन यू हैव टू सी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर केड़ी कंट्री विचों पास कर रहा है, राइट। इक्वेटर जिहड़ा है वो केड़ी कंट्री विचों पास कर रहा है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन केड़ी कंट्री चों पास कर रहा है। एंड रिमेंबर दिस, अफ्रीका एक रेयर कॉन्टीनेंट है जिस चों तीनों जिहड़ी लाइन्स है वो पास करदियां ने, राइट। ये फैक्ट्स जिहड़े अगर ये छोटी छोटी चीज़ां भी याद रखोगे तो ये हेल्प करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करन च, राइट। नाउ हुण डिटेल्ड तुसी युगांडा दा मैप देखो, ठीक है। साउथ सुडान की आप गल कर रहे थे, देखो साउथ सुडान इज़ अ कंट्री जस्ट लाइन नॉर्थ टू युगांडा। हजे युगांडा की देखते हैं। युगांडा विच जो भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ है अपन याद करने ज़रूरी है। रिवर्स, लेक्स जड़ियाँ भी हैं, प्लीज़ जस्ट गो थ्रू इट। ये क्वेश्चनस पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया होवे, अगर एक भी फैक्ट याद रह जाए दैट कैन हेल्प यू आंसर द क्वेश्चनस, ठीक है जी। तो ट्राई टू रिमेंबर इट। मोज़ैम्बिक का भी यही है। दिस इज़ द पोर्शन दैट आई शोड यू इन दैट मैप, इस नू ही हाईलाइट किया गया है इस विच, राइट। सो ये भी तुसी इंपॉर्टेंट एरियाज़ करने हैं। जाम्बेजी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, क्वेश्चन आ चुका है, अगेन इट कैन बी आस्क्ड। सो रिमेंबर, ट्राई टू रिमेंबर दिस। जिन्ने भी माउंटेन पासिस है, हाईलैंड्स है, लुक इन टू दैट, right, rivers, mountain passes, highlands, whatever is there, try to remember is lakes, lake Malwai is there, ठीक है। केड़ी कंट्रीज़ नाल सराउंडेड है ये देखना है आपां, तंजानिया, मलवई, ठीक है। इस तरीके नाल करन दी कोशिश करो, तुहानू आंसर्स करन च हेल्प कर सकता है। नाउ नैक्सट, नैशनल पार्टी का स्टेटस मिल गया है आप नू, राइट। हुण साडे लई ऑल द फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परसपैक्टिव, ठीक है जी। इंडिया विच 6 नैशनल पार्टीज़ हैं। देखो पहला भी 6 पार्टी सी आप तो पहला, बट जदों आप नू नैशनल पार्टी का स्टेटस मिलिया, देर आर मैनी अदर पार्टीज़ जिन्होंने नैशनल पार्टी का स्टेटस जिहड़ा है उन्हां तो लै लिता गया बिकॉज दे डू नॉट सैटिस्फाई द कंडीशंस, ठीक है जी। TMC तृणमूल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नैशनल कांग्रेस पार्टी, नैशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, ये तिन्ना का नैशनल पार्टी वाला स्टेटस जिहड़ा है वापस रिवोक कर दिता गया। प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। 6 नैशनल पार्टीज़ जो प्रेजेंटली प्रेजेंट है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। आप तुसी A, B² C² N इस तरीके नाल याद कर सकते हो। आप ABC, BJP, BSP, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, CPI एंड नैशनल पार्टी ऑफ पीपल NPP, नैशनल पीपल्स पार्टी, ये 6 जड़ियाँ है नैशनल पार्टीज़ अज इंडिया विच एग्जिस्ट करदियाँ हैं। जी TNC है, दे हैव बिन रिमूवड,
राइट दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ट्राई टू रिमेंबर क्वेश्चंस विच पूछा जा सकता है राइट हुणे किवें डिसाइड हुंदा है कि कोई पार्टी नैशनल पार्टी होवेगी कि नहीं राइट सो देयर आर सम रूल्स दैट हैव बीन गिवन इन द इलैक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर इस लॉ के अकॉर्डिंग डिसाइड हुंदा है इहदी लॉ दी प्रोविजनस के अकॉर्डिंग डिसाइड हुंदा है वैदर अ पार्टी कैन बी अ नैशनल पार्टी और अ स्टेट पार्टी और नन ठीक है जी तो फिर वो कंडीशंस क्या है ये याद करना ज़रूरी है बिकॉज दिस हैज़ बीन ऑलरेडी आस्क्ड इन दी UPSC एज वेल एज PPSC एग्जामिनेशन तो नैशनल पार्टी लिए क्या कंडीशंस चाहिए हैं इन्हां चों कोई भी एक कंडीशन सैटिस्फाई होना चाहिए है वॉट इज़ दैट कि पिछले तुहाडे दिस इज़ फॉर स्टेट पार्टी सॉरी दिस इज़ फॉर नैशनल पार्टी राइट पिछले तुहाडे लैजिसलेटिव असैंबली अपनी क्या होंदी है स्टेट लैवल ते एग्जिस्ट करती है विधान सभा जिन्होंने आप कह दें हैं देयर द पार्टी मस्ट हैव गॉट 6% वोट्स and 2 MLAs should be there from the party in the legislative assembly then it can be declared as state party right or 6% votes होन and 1 MP is there parliament च एक member है right then they can be declared as the state party or they have either 3% of total legislative assembly seats or 3 seats जेड़ा भी ज़्यादा है दोनों चो that will be considered right so factual information है there is nothing that we can do much इनू आई रट्टा मारना पैना है 2-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा not a big deal ठीक है जी एंड नैशनल पार्टी लिए तुहाडे च क्या होना चाहिए है यू मस्ट हैव गॉट 6% वोट्स इन द लास्ट लोक सभा इलैक्शंस इन मोर दैन 4 स्टेट्स ठीक है 4 या 4 स्टेट्स दे विच तुहाडे कोल तुहाडी वोट्स पईयां होण ते 6% ज़्यादा वोट्स तुहानूं पईयां होण ते 4 MPs तुहाडे होने चाहिए है दैट इज़ द फर्स्ट वे यू कैन बी डिक्लेयर्ड एज नैशनल पार्टी सैकेंडली और सैकेंड क्या है जो कंडीशन तुसी सैटिस्फाई कर सकते हो कि तुहाडी 2% सीट्स है फ्रॉम लोक सभा एंड दिस यू हैव अचीव्ड फ्रॉम 3 डिफरेंट स्टेट्स ठीक है इत्थे तो 6% वोट्स किसी भी स्टेट चो आ जान जस्ट ये है कि 4 स्टेट तो ज़्यादा तुहाडी रिप्रजेंटेशन होनी चाहिए है बट हेयर 2% सीट्स है लोक सभा चो एंड इक्वली 3 स्टेट्स चो डिवाइडेड होनी चाहिए है दैट इज़ वैन यू कैन बी गिवन दिस सीट ठीक है 3 स्टेट्स चो तुहाडे कैंडीडेट जिहड़े इलैक्ट होने चाहिए है जस्ट ट्राई टू रिमेंबर दिस फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन 6 नैशनल पार्टीज साडियां ते conditions क्या है this can be used in questions can be asked in questions right now next very important Guru Tegh Bahadur ji 9th guru of Sikh Dharm his Prakash Parv was celebrated on the 11th of April ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ basic information ਕਰਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ lot of information and discussion I did on 23rd December also please check that video also ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ होर भी काफ़ी फैक्ट्स गुरु गोबिंद सिंह जी नाल रिलेटेड बैटल्स भी डिस्कस कीतियां गईयां सी टुडे हेयर आई एम गोइंग टू डिस्कस जस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट गुरु तेग बहादुर जी ठीक है जी इन्हां दा बर्थ जिहड़ा है अमृतसर विच होया सी 1621 दे विच इन्हां दी मदर दा नाम है माता नानकी एंड ए 6th गुरु हरगोबिंद सिंह जी दे लाडले सी ठीक है जी इनीशियली देखो इन्हां नूं ज़्यादा दुनिया नाल रिलेशन ज़्यादा कनैक्ट नहीं सी आपदी मैडिटेशन आपदी दुनिया विच ज़्यादा लीन रहिंदे सी इन्हां दी इसीलिए इन्हां दा नाम त्याग मल भी रख दिता गया सी क्योंकि ये सब दुनियादारी तो दूर सी सब त्याग के ही वॉज लॉस्ट इन हिज ओन वर्ल्ड मेडिटेशन कनैक्टिंग विद द नेचर दैट इज़ वॉट यूज टू बी हिज चाइल्डहुड हॉबी ठीक है जी इसीलिए इन्हां दा नाम तेग मल भी रखा गया बट 13 साल की उम्र च इन्हां ने आपदी ब्रेवरी आपदी स्वॉर्डमैनशिप का इन्ना करतब दिखाया एक इंपॉर्टेंट बैटल दे विच कि इन्हां नूं तेग बहादुर का टाइटल भी दे दिता गया राइट इन्हां ने आपदी बहादुरी की प्रदर्शना 13 साल की छोटी उम्र विच कीती अगेंस्ट मुगल्स ही इंप्रैस्ड द Sikh community at that time and that is why he was also labeled as Tegh Bahadur राइट इस तरीके नाल इन्हां दा नाम यह पिया राइट हुण गुरु जी दे टाइम दी अगर आप ब्रॉडली गल करिए तो इस टाइम ते देखो औरंगजेब मुगल रूलर दा काफ़ी इंडिया विच दबाव सी
सो दिस औरंगजेब वॉज इंगेज्ड इन लॉट ऑफ कोहर्जन या सप्रैशन वाली एक्टिविटीज़, कन्वर्जनस भी बहुत ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, इस्लाम धर्म ਵਿੱਚ कन्वर्ट ਕਰਨ ਲਈ काफ़ी ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅੰਡਰ ਦਿਸ ਰੂਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਾफ़ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਐਂਡ ਇਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾਸ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ ਮਦਦ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਆਪਦੀ ਅਰਦਾਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁਗਲ ਰੂਲ ਦੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਏ, ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਅਸ, ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਰ ਬੀਂਗ ਫੋਰਸਡ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਇਨਟੂ ਇਸਲਾਮ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਾफ़ੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਈਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਫਸਟ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਕਨਵਰਟ ਮੀ ਦ ਗੁਰੂ ਇਨਟੂ ਇਸਲਾਮ, ਦੈਨ ਓਨਲੀ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਰੀਚ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਦਿਸ ਪਾਰਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਨਿੰਦਾ ਸਮਝੀ, ਆਪਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਨਸਲਟ ਸਮਝੀ, ਐਜ਼ ਐਨ ਓਪਨ ਚੈਲੰਜ ਸਮਝਿਆ, ਰਾਈਟ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ meeting with Guruji, rather than understanding the conditions, he captured Guruji and declared to torture and death beheaded at Chandni Chowk। ठीक है जी, उस टाइम ते गुरु तेग बहादुर जी नूं इन्हां ने ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ for the lack of better words, he tortured ਗੁਰੂ ਜੀ to death and beheaded him at the ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਐਟ ਦ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਜ਼ beheaded। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਸਗੰਜ ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਟੌਰਚਰ ਅਤੇ ਡੈਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਟਰਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਭਾਈ ਸੱਤੀ ਦਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੱਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਬੋਇਲ ਹੁੰਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਿਸ ਨੇਮਸ ਆਲਸੋ। ਐਂਡ ਨਾਓ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਗਿਵ ਯੂ ਨਿਮੋਨਿਕ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਸਲਟ ਟੂ ਰਿਲੀਜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਅ ਵੇ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਲਰਨ ਆਲ ਦੀ ਫੈਕਟਸ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਆਵਰ ਰਿਲੀਜਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ MSD ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧੋਨੀ, so you can learn this 3 names also with this mnemonic, Bhai Matti Das, Bhai Satti Das, Bhai Dayala ji, right? So Seesganj Gurudwara, MSD, this we have to remember, all these facts are important। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੈਂਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਧੜ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, at that time ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ also he is known as ਭਾਈ ਜੈਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਸ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਮੇਟਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਐਟ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ's ਹਾਊਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਬੋਡੀ ਰੱਖੀ ਐਂਡ ਆਪਦੇ ਪੂਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਇਨ ਰਿਸਪੈਕਟ ਆਫ ਗੁਰੂ ਜੀਜ਼ ਬੋਡੀ। ਐਂਡ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੀਸਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਐਟ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵੇਅਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਹੈਂਗਡ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਅਗੇਨ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਐਟ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਹਿਜ਼ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਵਾਜ਼ ਕ੍ਰੀਮੇਟਡ ਐਟ ਦੀ ਇਨ ਦੀ ਹਾਊਸ ਆਫ ਭਾਈ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਰਾਈਟ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈੱਡ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ that is what is the important news that you need to remember about Guru Tegh Bahadur ji। ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਕਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਸੈਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਲਈ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ये तो भी क्वेश्चन आ सकता है विच गुरु इज़ रेफर टू एज दी हिंद की चादर। देखो हिंद की चादर का खिताब इन्हों दिता गया फॉर हिज सैक्यूलर इगलिटेरियन कैरेक्टर, राइट। दैट इज़ अबाउट दिस न्यूज़। ट्राई टू रिमेंबर ऑल द फैक्ट्स जोड़े आप इत्थे डिस्कस किए हैं, नाम तो लैके प्लेस तो लैके एवरीथिंग इज़ इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड ऑन एनीथिंग, ठीक है। जस्ट याद करने का तरीका है, जिवें मैं तुहानूं कुछ निमोनिक्स दिते, थोड़ा स्टोरी याद करने की कोशिश करो। गुरु तेग बहादुर जी के टाइम ते औरंगजेब वाले रूलर का राज सी, दैट इज़ वाई दोनों कन्फ्लिक्ट विच आए एंड गुरु जी वॉज बीहैडेड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, ठीक है। जिथे उन्हों की बीहैडिंग हुई सी चांदनी चौंक विच, उत्थे सीसगंज गुरुद्वारा है। उन्हों की बॉडी जिथे जलाई गई सी भाई लखी शाह के घर विच, उत्थे गुरुद्वारा रकाबगंज जी साहिब है, ठीक है जी। गुरु तेग बहादुर जी नाल 3 होर लोगों की श्रद्धांजलि दी गई सी। MST निमोनिक तो याद कर सकते हैं, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला जी, राइट। दैट इज़ द इन्फॉर्मेशन दैट यू हैव टू रिमेंबर। फाइनली अज का टॉपिक अपना BBMB बेस्ट हाइडल जनरेटर, भाखड़ा बियास मैनेजमेंट बोर्ड जिहड़ा है उन्होंने 2023 का अवॉर्ड दिता गया है ऑन बेस्ट हाइड्रो पावर जनरेटर, ठीक है। ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो याद ही रखो, भागड़ा के मैनेजमेंट बोर्ड को अवॉर्ड मिलया है इस साल। हाइडल पावर क्या होंगी है, दिस इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो किसी भी हाइड्रो पावर जनरेट किमें होंगी है, आई थिंक वी ऑल नो, आपने 8वीं 9वीं क्लास में ऑलरेडी पढ़िया है। वाटर नू स्टोर कर लिता जाता है, एक हाइट ते आप वाटर नू स्टोर करते हैं, दैन वी लैट दी वाटर टू रन। जब प्रेशर नाल वाटर आता है नीचे, देयर इज़ अ शाफ्ट टरबाइन दैट इज़ प्लेसड हेयर। ये जब पानी पैंदा है, ये जी शाफ्ट है वो रेगूलरली घूमती रहती है, राइट। नाउ दिस एनर्जी ऑफ द रोटेटिंग टरबाइन इज़ कन्वर्टेड टू प्रोड्यूस इलैक्ट्रिसिटी, ठीक है। एक किनेटिक एनर्जी जी है वो कन्वर्ट होकर यूज़ हो रही है इलैक्ट्रिकल पावर विच, दैट इज़ वॉट इज़ दी हाइड्रो पावर जनरेशन, ठीक है। ये हाइड्रो पावर जी होंगी है काफ़ी क्लीन तो ग्रीन वे है, कोई भी पोल्यूशन ज़्यादा इत्थे क्रिएट नहीं होंगी हाइड्रो पावर दे, इसीलिए काफ़ी सारे बेनिफिट्स है। लो कार्बन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ इलैक्ट्रिसिटी है, तुसी दोबारा वाटर नू रीयूज़ करके यू कैन क्रिएट हाइड्रो पावर एनर्जी, राइट। मल्टीपल यूजेस है ये, तुसी एग्रीकल्चर लई, इरीगेशन लई ये वाटर यूज़ कर सकते हो, ड्रिंकिंग लई यूज़ कर सकते हो, ट्रांसपोर्टेशन वाटर बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन लई यूज़ कर सकते हो, फ्लड कंट्रोल लई डैमिंग यूज़ होंदी है। तो जिहड़ा हाइड्रो पावर का स्ट्रक्चर है वो मल्टीपल वेज विच यूटिलाइज होंदा है, राइट, ठीक है। एनर्जी सिक्योरिटी विच इंश्योर करते हैं, सानू बाहरले देशों ते ऑयल लई डिपेंडेंट नहीं रहना पएगा इफ़ वी कीप इंक्रीजिंग हाइड्रो पावर इलैक्ट्रिसिटी, बिकॉज दिस इज़ द ग्रीन एंड रिन्यूएबल एंड प्रेजेंट इन इंडिया ओनली एनर्जी, ठीक है। एंड ऑब्वियसली जॉब्स वगैरह तो काफ़ी क्रिएट होंदियां ही हैं। फॉर ऑल दीज रीजनस हाइड्रो पावर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ये इन्फॉर्मेशन याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम, यू कैन मेक इट इज़ ईजी, नॉट वेरी डिफिकल्ट, जस्ट शोकेस इस तरीके नाल टरबाइन दे उत्ते पै रहा है एंड दैट इलैक्ट्रिसिटी इज़ गेटिंग जनरेटेड। जस्ट राइट हेयर दैट काइनेटिक एनर्जी इज़ गेटिंग कन्वर्टेड इनटू इलैक्ट्रिक एनर्जी। ये सब फिजिक्स के बेसिक्स है, ये तो तुहानू प्रीलिम्स भी क्वेश्चन आ सकता है। जस्ट ओपन योर बुक टुडे साइंस दी बुक्स एंड ट्राई टू सी द हाइड्रो पावर बेसिक्स, ठीक है। दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ न्यूज़पेपर। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आज आया है, प्लीज़ लिसन टू द डिस्कशन वेरी केयरफुली, मेक नोट्स, रीड दीज मैप्स वेरी केयरफुली फ्रॉम योर एटलस, फ्रॉम योर इंटरनेट, ट्राई टू मेक आउट ऑल द पॉसिबल क्वेश्चंस योर सेल्फ, की क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इन्फॉर्मेशन लिख के रखो, राइट। कुछ भी डाउट हो जस्ट मैसेज अस एट 8837604500, राइट। कोई भी टेस्ट सीरीज़ नाल रिलेटेड तो इशू है जस्ट मैसेज अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।